Hello everyone and welcome to InstaIQ. Welcome to the number series, the another part of the number series, that is the divisibility rules. Okay, so here we are going to learn the divisibility rules from 1 to 10. Okay, we are going to cover. So here we will learn the divisibility rules using the short tricks. Okay, and we will check the number is divisible by the numbers are not. Okay, so from 1 to 10 we are going to learn here. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the 10. Okay, so out of this 10 number there is a no need to learn all the digits. Okay, divisibility rules of all the digit. Let me give you an example of what actually we are going to learn in the divisibility rules. Suppose, let me take here one number, that is 2 3 9 8 7 1. So this number is divisible by 3 or not, this number is divisible by 9 or not, this number is divisible by 8 or not. Okay, we are going to learn that things. All right, so here we know that every number is divisible by 1, so then there is a no need of learning the divisibility rule of 1. Okay, again there is a no need to learn the divisibility rule of 2, because all even numbers are divisible by 2. Correct, we know that. If you find here at the last digit, if you find 0 2 4 6 8, okay, so the number is automatically divisible by 2, so no, again there is a no need. If we take the number 5, okay, 5 is again easy. If the last digit of the number is 0 or it is 5, then it is divisible by 5, so no need to learn the rule of 5, it is easy. Again the rule of 0 or the rule of 10 is again easy. We can easily understand the number is divisible by 0 or 10. Getting my point? So out of this from 1 to 10, or we can say 0 to 9, out of this there is a no need to learn the divisibility rule of these four digits. Getting my point? So what is left? We left with 3, 4, 6, 7, 8 and 9. So let me again help you out, dear one. See, if you easily learn the rule of 3, automatically you will get the rule of 9, because there is a similarity, conceptual similarity between the rule of 9 and 3. If you know the rule of 4, easily you can understand the rule of 8. So here, out of the remaining number, we can easily find the 3 with 9, the 4 with 8. So what is left? We left with 6 and 7. So independently we will learn the rule of 6, independently we will learn the rule of 7. Okay class, so let's move forward. So here let's we learn the rule of 3 and 9. Okay, see, make sure the sum of the addition of all the digits. Suppose let we take a number, the example is 123, 1 2 and 3. Okay, this number is divisible by 3 or it is 9. So what is the rule says add all the numbers, means if you add 1 2 and 3, what is the total addition? It is 6, and 6 is divisible by 3, hence the complete number is divisible by 3. Getting my point? If the addition is a multiple of 9, see, 6 is a multiple of 3, so 6 is divisible by 3, means 123 is divisible by 3, but 6 is not a multiple of 9, hence the 123 number is not divisible by 9, but it is divisible by 3. Let me take another example. The another number is 196263. Getting my point? So if you add all the number 1 plus 9 plus 6 plus 2 plus 6 plus 3, the addition becomes 27. So class, please make sure 27 is a multiple of 3 and 27 is a multiple of 9. So the complete number is divisible by 3 also, and it is divisible by 9 also. So what is the conclusion class? The conclusion is that a number is divisible by 3 doesn't mean the number is divisible by 9. गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो 9 से होगा ही, इसकी गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. लेकिन अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो ऑटोमेटिकली वो 3 से डिवाइड होना ही है, बिकॉज 9 इटसेल्फ ये 3 का ही मल्टीपल है. गेटिंग माई पॉइंट? So moving to the next rule. So I just hope you people understand the rule of 3 and 9. 3 और 9 का रूल आप शायद समझ गए होंगे. जो भी नंबर होगा उसकी सारी की सारी आप एडिशन करते हो तो एडिशन जो है वो 3 का या तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए. ओके, मूविंग फॉर द नेक्स्ट रूल ऑफ 4 एंड 8. ये बहुत ही आसान सा रूल है. कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ओके, लास्ट के अगर 2 डिजिट
अगर ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि ये 316 ये नंबर है, तो लास्ट के 2 डिजिट 16 है, 16 अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो रूल ऑफ 4 क्या है दोस्त? रूल ऑफ 4 ये है कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो या तो 0 0 होने चाहिए, या फिर लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ये इतना बड़ा नंबर है, ये 4 से डिवाइड होता है क्या देखेंगे? तो देखो लास्ट में है 16, तो लास्ट के दोनों डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, तो यस ये नंबर 4 से डिविजिबल है। लेकिन ये 8 से डिविजिबल है क्या दोस्तों? ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो 8 का रूल ये है, हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होंगे। अगर किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर होने दो दोस्त, अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर ये 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट इज द रूल ऑफ 8? तो रूल ऑफ 8 ये है कि लास्ट के 3 डिजिट ये 0 0 0 होने चाहिए। 0 0 0 का मतलब होता है 1000, 0 0 का मतलब होगा 100। ओके, 0 0 0 होने चाहिए, या तो ये डिविजिबल बाय क्या होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो पूरा का पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए अगले रूल पे चलते हैं, रूल ऑफ 6। ओके, सो क्लास रूल ऑफ 6 ये कहता है कि ये बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी नंबर हो, मान लीजिए मैं ये लेता हूँ 2 1 6 8 9, ओके, ये नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उसका रूल है ये उसके फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए। यानी अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 6 की कहानी ये है दोस्तों, अगर कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होना है तो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? द कंडीशन इज नंबर इवन होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है दोस्तों, अगर कोई नंबर इवन है तो वो 6 से डिवाइड होने के लायक है, हो सकता है। लेकिन सेकंड कंडीशन ये है, 3 का रूल भी अप्लाई होना चाहिए, यानी एडिशन ऑफ ऑल द डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको एडिंग, अब देखिए ये नंबर देख के ही पता चलता है ये नंबर ऑड है, तो ये नंबर डेफिनेटली 6 से डिवाइड होने वाला है ही नहीं। लेकिन फिर भी चेक करते हैं कि ये 3 से डिवाइड होता है क्या। सो 2 + 1 हो गया 3, 3 + 6 ये हो गया आपका 9, 9 + 8 हो गया आपका 17, और 17 + 9 हो गया आपका 26। तो 26 अगेन इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो ये नंबर ना 3 से डिवाइड होगा और ना ही ये इवन है, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं, 132 लेते हैं। तो 132 का एग्जांपल ये है, सबसे पहले ये नंबर होना चाहिए इवन। इवन अगर है तो हमें चेक करना होगा 3 का रूल। तो 3 का रूल ये कहता है, समेशन करो पूरे इसका, 1 + 3 4, 4 + 2 6, तो इसकी एडिशन 6 आती है, तो 6 ये मल्टीपल है 3 का, तो इसका मतलब कंप्लीट नंबर ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ओके दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा आखिरी रूल बचता है, रूल नंबर 7। तो क्लास रूल नंबर 7 देखिए, ये थोड़ा सा अटपटा सा है। इसका कोई सिंपल लॉजिक नहीं है, इसके लिए हमें थोड़े से कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका रूल जानते हैं हम लोग। रूल ऑफ 7, देखो कोई भी नंबर है तो आपको क्या करना है? डबल द लास्ट डिजिट, यानी आपको डबल द लास्ट डिजिट, यानी सबसे नंबर का सबसे आखिरी अंक जो है उसका डबल करना है, एंड हमें उस डबल किए हुए नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है बाकी नंबरों से, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स। रिमेनिंग नंबर्स, तो देखिए मैं कैलकुलेट आपको करके बताता हूँ, वहां पे थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगा। सो 1 2 3 4 8 7 ये हमारा नंबर है, और ये 7 से डिवाइड होता है कि हम चेक करेंगे दोस्तों। देखो लास्ट में 7, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर वो डिवाइड हो ही जाएगा आपका। ठीक है, तो डबल द लास्ट डिजिट, तो सबसे पहले मैंने 7 को डबल करता हूँ तो ये आता है 14, और ये जो बचे वाले रिमेनिंग नंबर है ना 1 से लेके 8 तक, इनमें से मुझे उस प्रोडक्ट को डिलीट करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 का डबल होता है 14, तो मैं 14 डबल करता हूँ रिमेनिंग नंबर से, तो क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 3, 1 2 3। तो अब देखो स्टिल हमें ये पता नहीं है कि ये नंबर फिर से 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे जब तक हमारे लिए इजी नहीं हो जाता है। तो यही अगेन 4 को हम डबल करेंगे तो 8, और बचे वाले ये जो नंबर है इनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बचेगा यहाँ पे 25, 1 2 2 5 ये नंबर हमारा बचा है। फिर से चेक करेंगे हम, 5, 5 का डबल होता है 10, तो बचे वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, 1 1 1 2 आएगा। ठीक है, फिर से हमें नहीं पता है तो हमें 4 को 2 को क्या करेंगे? फिर से डबल करेंगे और बचे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 11 - 4 कितना आता है दोस्तों? 7। यस, 7 आता है। तो वी कैन डायरेक्टली से दैट, अगर आपको पता है कि 112 ये डिविजिबल बाय 7 है, तो आप यहीं पे रोक सकते हैं अपना कैलकुलेशन। मुझे थोड़ा सा क्लिक नहीं हुआ, सो मैं और आगे बढ़ा। ठीक है, तो 7 लास्ट में 7 आया है, तो डेफिनेटली 7 जो है वो 7 से डिवाइड होता है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो,
यहाँ पे डबल डिजिट डिवाइड करने का अगर आपको लगता है कि 120 यानी 12,334 ये डिवाइड होते हैं 7 से, तो आप यहीं पे अपना कैलकुलेशन क्लोज कर सकते हैं। नहीं होता है तो फिर से अगली प्रोसेस चलाइए। अगर आपको लगता है कि 1225 ये डिविजिबल बाय 7 है, तो आप यही अपनी प्रोसेस रोक सकते हैं दोस्तों। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द डिविजिबिलिटी रूल। आगे हम और पढ़ेंगे जिसमें हम 11 से लेके 15 तक, उसके अगले वीडियो में 16 से लेके 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।